شمالی کشمیر کے ضلع بارامولہ میں فوج کی جانب سے انجام دیے گئے اڑی آپریشن کے دوران گرفتار کیے گئے پاکستانی ملیٹنٹ کو فوج نے میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ اس دوران اس نے یہ بات تسلیم کی کہ وہ پاکستان کا رہنے والا ہے اور پاکستان میں اسے دہشت گردی کی تربیت دی گئی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ خود سپردگی کے بعد ہندوستانی فوج نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ شروع کیا تو سیاپور چلا گیا فیکٹری میں کا پڑے تو ادھر ایک آس نام لڑکا تھا جو کہ سب کانٹریکٹر ہوتا تھا فوج کی تھی تو اس کو سب وہ لشکر طلبا کے لیے 22 سال کے لڑکے کا کام کرتا تھا تو مجھے وجہ نہیں پتا تھا تو اس میں ایسا بات کی کوئی ایسا تھی اس میں ایسے بھی ڈگریز آپ کے اندر اور مجھے بولا کہ جہاں پہ لے کر اس نے مجھے 20,000 روپے میں گھر بھیج دیا۔ ہم چاروں کو کام کرنا کشمیر میں آنے کا خاص کیا تھا پڑھنے میں آنا تو ہم نے تو پیار کیا بہت پیار کر رہے ہیں ہم لوگ پیار کیا اور لوگ پیار کرنے کے بعد ہمیں پاکستان کے لوگ شیر لین میں پھر پاکستان میں ادھر گئے افغانستان میں دیا ایک ڈیوٹی اور 5 بھینس میں دی 2 کچھ دیا اور ایک کسر دیا ہم نے سامان لیا راشن دیا کھانے پینے کا 8-9 دن کا سامان تھا دیکھا کہ ہندوستان آرمی نے علاقے کو گھیرا اور سیل کر لیا تھا۔ سیل کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا جو پڑا تھا انہوں نے اعلان کیا قلم کرا کہ اپنے آپ کو ہمارے بارے کر دو ہم آپ کو کچھ نہیں دیں یقین دار لڑائی میں لیکن جو میرے ساتھ انس بھائی تھا وہ پرانا بندہ تھا اس نے فائر کر دیا پر مارا دیا کیونکہ ہندوستانی آرمی کے جوان کو فائر کیا فائر مارا اس نے پھر تو آگے کر رہے کہ ہندوستانی آرمی فائر کھولا اس میں ساتھ وہ آدمی تھا انس اس کو تو مار گیا اعلان کیا ہندوستانی آرمی نے سرنڈر کیا سرنڈر کرنے کے بعد مجھے ایسا ٹوٹا اس سے مارا پیٹا نہیں بھائی کی طرح میٹر کی طرح رکھا سرنڈر کیا منسٹر رسپانس کیا اس ظلم جاتی قیدی نہیں بنا سکتا ابھی انسانیہ کو ایسا ظلم جاتی نہیں کی تو میں کوشش کرتا رہا مجھے کچھ مارا پیٹا نہیں جیسے قیدی نہ پانا لیکن میں نے غلطی کی میں نے غلطی کا احساس میں نے بیک کو کی ہے۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ نئی پارٹیوں کو تشکیل دینے سے این سی کمزور نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کو عوامی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے این سی کو ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ ان باتوں کا اظہار پارٹی کی سینئر لیڈر سکینہ اتو نے ٹاؤن ہال کلگام میں پارٹی انتخابات عمل میں لانے کے موقع پر کیا۔ ضلع کلگام کے لیے عبدالمجید لارمی کو صدر منتخب کیا گیا ہے۔ میر سیف اللہ، علی محمد ڈار، عمران نبی ڈار، صفدر علی خان سمیت دیگر لیڈران موجود تھے۔ دور اگر یاد کریں گے بخشی صاحب کا دور جو شیر کشمیر ہمارے ایک بہت بڑے قائد مانے جاتے تھے پورے ورلڈ میں، ان کے ساتھ بھی یہ کوشش کی گئی ہے دوسری پارٹیوں کو کھڑا کرنے کی۔ فاروق صاحب کے ساتھ کوشش کی گئی 96 میں ان کو اکثریت ہونے کے بعد کرسی سے ہٹایا گیا ہے اور ان کے لوگوں کو خریدا گیا ہے، لالچ دی گئی، لیکن مجھے کشمیر کے جموں کشمیر کے لوگوں پہ بھروسہ ہے۔ اس ٹائم بھی انہوں نے ثابت کر کے دکھایا اور وہ سرکار جو ہے زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک چلی اور اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا اندرا گاندھی جی تھی یا راجیو گاندھی جی تھے، ان کو مجبوراً جو ہے جموں کشمیر میں پھر سے الیکشن کرنے پڑے اور پھر سے یہاں کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کیا۔ آج یہی چیزیں پھر دہرائی جاتی ہے، چاہے وہ آپ کیا ہے وہ اپنی پارٹی ہم تو اس کو گھر کی جماعت بولتے ہیں، ان کی گھر کی جماعت جنہوں نے یہ بنائی ہے پی سی پیپلز کانفرنس انڈیپینڈنٹ پارٹیاں جو ہے سارے صرف کشمیر میں ہی ان کو پلانٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس حل والے جھنڈے کو اس نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے لوگوں نے ثابت کر کے دکھایا، چاہے ڈی ڈی سی الیکشنز تھے، چاہے سرپنچ الیکشنز تھے، چاہے اور بھی اگر کوئی کہیں پہ بھی لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے تو انہوں نے دکھا دیا۔ یہاں واحد ایک جماعت ہے وہ صرف نیشنل کانفرنس ہے۔
कांग्रेस ने कहा कि यूटी में असेंबली इंतखाबात अमल में लाए जाने चाहिए ताकि अवामी मसाइल का इजाला मुमकिन हो। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने बरीगाम कुलगाम में पार्टी वर्करों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 पीडीपी और एनसी वापस नहीं ला सकती है। कांग्रेस वाहिद जमात है जो लोगों की तर्जुमान है। इस मौके पर वर्करों की खासी तादाद मौजूद थी। 370 को वापस लाएंगे, 35 को वापस लाएंगे, ये कोर्ट में है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। कौन ये इनका ताकत नहीं है, न फारूक अब्दुल्ला का ताकत है, न महबूबा मुफ्ती का ताकत है जी, कोई ये वापस नहीं ला सकता। ये सुप्रीम कोर्ट, ये दिल्ली गवर्नमेंट वापस दे सकती है 370 और 35A। जिन्होंने ये वापस लिया, मैं अपील करता हूँ मोदी साहब को, यहाँ हमारी गवर्नमेंट जब आएगी 370 और 35A और स्टेटहुड फर्स्ट प्रायोरिटी पर कश्मीरी को वापस मिलेगी। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया। वज़ीर ने कानीपुरा जटलजारा मॉडल एग्रीकल्चर फार्म का संग बुनियाद रखा। वज़ीर ने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर ने एक पब्लिक दरबार से भी खिताब किया। दरबार में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर ने DC ऑफिस में अमन कानून की सूरत हाल को लेकर सिक्योरिटी एजेंसियों से एक मीटिंग मुनक्किद की। मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर ने मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकात की। वज़ीर का कहना था कि दफ़ा 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन व अमान के साथ साथ तामीर व तरक्की का नया दौर शुरू हो गया है। लोग बढ़ चढ़कर अवामी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उनके हमरा DIG शिमाली कश्मीर शुजेत कुमार सिंह, डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन, SSP और SP हंदवाड़ा भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर VK सिंह का अनंतनाग का 3 रोज़ा दौरा अख्तिताम पजीर हो गया। वज़ीर ने श्रीनगर काजीगुंड सेक्शन पर कौमी शाहराह पर तैयार किए जा रहे एमरजेंसी लैंडिंग प्रोजेक्ट का मुआयना किया। NHAI के अफसरान ने वज़ीर को मनसूबे पर काम की पेशरफ्त के अलावा इक़दामात की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ़ कराया। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने वज़ीर को बताया कि इंतज़ामिया NHAI के हुक्काम को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। वज़ीर ने डाक बंगलो खनबल में मुंतखब अवामी पंचायती नुमाइंदों और दीगर वफूद के साथ तबादला ख्याल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शराब और मंशियात कश्मीर में कई ख़ानदानों की बर्बादी और जराइम में इजाफे का सबब बन रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के नौजवानों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने टैगोर हॉल श्रीनगर में एक आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने इसका इनकाद किया था। इसमें मुख्तलिफ तलबा ने हिस्सा लिया। फारूक अब्दुल्ला ने फातिह तलबा में इनामात व मेडल तकसीम किए। माहौलियात के हवाले से भी जानकारी दी गई। ये जो शराब है, इसका जो नशा है आजकल चल रहा है, आप खड़े हो जाइए कभी जहाँ ये बिकता है और आप देखें किस तरह लोग खरीद रहे हैं। और ये भी एक बर्बादी का आलम लाएगा, क्योंकि घरों में जब एक दफ़ा शराब का आपको असर पड़ जाए, उसके बाद आपको शराब पीने के लिए चोरियां करनी पड़ेगी। ड्रग्स के लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो आप क्या कैसे ड्रग्स करेंगे, आप चोरियां करेंगे, कत्ल भी कर सकते हैं। आज ये रिपोर्ट है कि यहाँ के नौजवानों में हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनको ये ज़रूरी है कि सोशल इंटरेक्शन बच्चों को मौका देना चाहिए। और हमारे पास टैलेंट है, आज मैं देख रहा हूँ, आप भी देखेंगे कितनी अच्छी पेंटिंगें इन बच्चों ने बनाई है। बच्चे हैं जिनको भी स्टडीज़ में मतलब ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो स्टडीज़ में ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो बस इन्हीं सब चीज़ों में ध्यान दे रहे। स्मोकिंग हो रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, उनको चाहिए कि उनको स्टडीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, मगर ये क्या हो, जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, जब मतलब स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे, उनकी वजह से भी डिप्रेशन बढ़ जाते हैं बच्चों को। उनकी जी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर अवेयरनेस करने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत लोग जो है यहाँ पर अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा पीक पे है कश्मीर में, तो उन लोगों को जो है वो ज़्यादातर ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ्स हो रही है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। जम्मू में डेंगू फैल गया है। GMC और दीगर अस्पतालों में हालिया दिनों 85 से ज़्यादा अफराद को काफ़ी बुखार और डेंगू के दीगर अलामात के चलते दाखिल कराया गया। डेंगू से खित्ते में एक शख्स की मौत हो चुकी है। जम्मू ज़िले में ही 27 मरीज़ अस्पतालों में दर्ज किए गए हैं।
GMC जम्मू की प्रिंसिपल का कहना है कि हालिया दिनों जम्मू में डेंगू के केस काफ़ी बढ़ गए हैं। उनका कहना है कि इसकी कई वजूहात हैं। पूरे जम्मू रीजन में ही कोई 80 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं आज तक, और काफ़ी लोग दाखिल भी हुए हमारे पास। हमने यहाँ पे कोई 2 कैबिन्स अलग डेडिकेट कर दिए हुए हैं डेंगू केयर के लिए, जिसमें 12 बेड हैं। जो भी डेंगू का सस्पेक्ट हो, क्योंकि इसमें तो बुखार ही होता है, बुखार थोड़ा सजेस्टिव होता है, इसमें इसको बोन ब्रेकिंग फीवर बोलते हैं। फ्रंटल हेडेक होती है सिर के अगले हिस्से में, या रेट्रोबल्बर हेडेक, आँख के पीछे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, और तेज़ बुखार भी रहता है। ऐसे ही मिलता जुलता बेशक हम भूल रहे हैं, एक चिकनगुनिया भी हमारे दिमाग में रहता है, वो भी मच्छर के ही काटने से होता है। तो ये दोनों सीज़न भी है। GMC जम्मू की प्रिंसिपल ने यकीन दिलाया है कि डेंगू के मरीजों के इलाज की खातिर तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने इस बीमारी की रोकथाम के लिए घरों में तमाम तरह की एहतियात बरतने की अपील की है। आपको अपने आगे पीछे जो एरिया है वहाँ पे ये तो स्टैगनेंट वाटर होना नहीं चाहिए। इसमें ये कंजॉइंट एफर्ट्स रहती है। हमारे यहाँ भी हॉस्टल्स में हमने फ्यूमिगेशंस भी कराई, आगे पीछे कहीं पानी रुका तो नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान दिया गया। और बाकी है कि मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स के अलावा अगर किसी को हो जाता है बुखार, प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, जब हमें पता कि मच्छर के काटने से ही होती है, तो मॉस्किटो कंट्रोल पे ही ज़्यादा ये प्रिवेंटिव मेजर आ जाती है, उसी पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और वैसे जब किसी को हुआ है तो हमारी पूरी व्यवस्था है इस हॉस्पिटल में मैनेज करने की मरीज़ को। जम्मू के जगती नगरोटा में मुकीम माइग्रेंट कश्मीरी पंडित 361 रोज से एहतजाज पर हैं। एहतजाजियों का कहना है कि गुज़श्ता 4 साल से उनके माहाना रिलीफ में कोई इजाफा नहीं किया गया है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में उन्हें 13,000 रुपये के कलील माहाना रिलीफ से गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से माहाना रिलीफ को 25,000 रुपये फी कुंभ करने की मांग की है। एक्साइल में है, 31 साल से हमारी मांगों को पूरा किया जाए, रिलीफ को बढ़ाया जाए, और जिन घरों में नौकरी नहीं मिली है आज तक, उन घरों में नौकरी दी जाए। सोपुर में फ्रूट ग्रोवर्स और डीलर्स ने एहतजाज किया। जनूबी कश्मीर से कुछ रोज कबल गुलाम नबी नायको नामी ताजिर के लापता होने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। फ्रूट मंडी सोपुर के सदर फयाज मलिक ने कहा कि अचबल रफियाबाद का मुतल्लका ताजिर 1 हफ्ता कबल ट्रेन के जरिए शोपिया गया था, मगर तब से उसका कोई अता पता नहीं है। उसका फ़ोन बंद आ रहा है। उन्होंने पुलिस और मुतल्लका एजेंसियों से इस सिलसिले में कार्रवाई की मांग की है। 22 तारीख शाम को ट्रेन से गया है शोपियान के लिए किसी तकाजे के लिए, लेकिन ट्रेन से ही उतरते ही उसका कोई अता पता नहीं, स्विच ऑफ आ गया है। हमने हर जो पुलिस अथॉरिटीज़ है उनसे बात की है। पुलिस को चाहिए कि उसमें सूरत लाई जाए, जहां भी वो कहीं हो उसका पता लगाया जाए। अगर इस मामले में सूरत नहीं लाई जाएगी तो हम मजबूर हैं सड़कों पर निकलने के लिए। हम मंडी भी बंद करेंगे और एहतजाज करेंगे, हम हर एक चीज़ बंद करेंगे। ये आज हमारे एक मेंबर के साथ, कल हमारे साथ भी होगा। कल को जब बाजियाब नहीं, कोई सेफ्टी नहीं रही, 8 दिन हो गए, 8 दिन में वो बाजियाब नहीं हुआ। पुलवामा की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी में बुनियादी सहूलियात का फकदान है। 20 बरस कबल वजूद में आई पुलवामा के परिशु इलाके में फ्रूट मंडी में दुकानों की तामीर नहीं की गई है। मंडी को तोसी देने के लिए हुकूमत ने 5 साल कबल अराजी भी हासिल की थी, लेकिन आज तक मंडी की तजदीद और मरम्मत के अलावा दुकानें तामीर नहीं की गई। काश्तकारों ने कई बार हुक्काम की नोटिस में भी लाया और मंडी को सर्कुलर रोड से जोड़ने की मांग की, तहम काश्तकारों की मांग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुश्किलात सारी खुद बोर्ड है सह गो अलाटमेंट। सारी फकीर सिंद पे दोहस बेगत नखस कथन फेरान आसान न सुविधा तीचा दुकान वुकान हज। अगर बेहनस करस कुछ जाय आ ठीक पे बेहमा कुछ जाए तो यह मंडी रोज वरी किस वरियस चालू। दोम चीज रोजान ट्रांसपोर्ट ये बड़ बार रश माल सुबह शाम तम या नबरी नीरत न अंदर। यहाँ बहुत मुश्किलात है, वो अलाटमेंट नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, खासकर डायरेक्टर हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर से पुरजोर गुजारिश है कि अलाटमेंट जल्द अज जल्द किया जाए। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सर जागृत राल के लोगों ने फौज पर एक चौपान फैमिली को
ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम लगाया। फौज ने इस हवाले से एक बयान जारी करते हुए इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। फौज का कहना है कि इलाके में न तो किसी घर की तलाशी ली गई थी और न ही फौज ने 27 और 28 सितंबर की दरमियानी शब किसी की मारपीट की गई थी। फौज के बयान के मुताबिक अली मोहम्मद चौपान उस शब्बीर अहमद के वालिद हैं जो मिलिटेंटों को मदद करने के लिए PSA के तहत बंद है। ये ख़ानदान जैश मोहम्मद के हलाक किए गए मिलिटेंट अब्दुल हमीद चौपान का रिश्तेदार है। ये ख़ानदान सैफुल्लाह नामी मिलिटेंट को मदद करने में मुलविस रहा है। फौज के बयान के मुताबिक त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस के चलते मिलिटेंटों के मददगारों से इस तरह के इल्ज़ामात की तवक्को थी। फौज का कहना है कि ऑपरेशंस में रखना डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस हवाले से अफवाहें और गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया जा रहा है। RSS के सरबराह मोहन भागवत 30 सितंबर से रजाकारों की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए जम्मू का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। भागवत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जम्मू यूनिवर्सिटी में एक तकरीब में शिरकत समेत कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। 3 अक्टूबर को वो जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन मोड के जरिए संघ के स्वयंसेवक से खिताब करेंगे। स्वयंसेवक ऑनलाइन एड्रेस सुनने के लिए मंडल और बस्ती सतह पर जमा होंगे। ज़िला शोपियां नोपुरा हिरपुरा इलाके में 70 साल मोहम्मद अफजल और उनकी अहलिया खस्ता हाल और गैर महफूज इमारत में कसमपुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस गरीब जोड़े का इल्ज़ाम है कि उन्हें IAY स्कीम से महरूम रखा गया है। अपने 2 मासूम बच्चों के साथ एक खस्ता हाल घर में रहने वाले अफजल का एक बच्चा बीमार भी है। उन्होंने अपना सब कुछ इसके इलाज पर सर्फ किया है। उनके बड़े बेटे की राजौरी में शादी होने के बाद इससे भी अपने बुजुर्ग वालिदैन को अल्लाह के रहम करम पर छोड़ दिया है। मजबूर होकर अफजल को मजदूरी के लिए लद्दाख जाना पड़ा है। इस मुस्तहक ख़ानदान का कहना है कि कई मरतबा मुतल्लका हुक्काम की नोटिस में लाने के बावजूद उनके हक़ में IAY स्कीम मंजूर नहीं की गई है। उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैतुल खला तामीर करने के लिए भी इमदाद नहीं मिली है। इलाके के लोगों की शिकायत है कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। जाय नीरिथ बह गई वीडियो सबस तह गई और DC ऑफिस तन दुख कहें अयाल चलान या शड़स पे ये अक दह योर अख नफर तम कोर बिचार रपस 10-13 सास मदद मे यह टीम तो अत कोर पे यह पश न मे ना कहीं मदद यम दशवे बच्चे बेमार यह बेमार अम्स पायलट लेटस तह सड़ेमित अम्स खून सेल तह सड़ेम मे कुछ जाए जमीन पाव खंड सह यम कनित तम रपस 3 लाख लगिम अमिस तो आज कम अज कम मगर वह पकन वह दपो डॉक्टर साहब 20 शाय नियो मगर मे तूत गुजारे बह निमहा 20 शाय। हमने आज हुरपोरा के नावपुरा गांव में जाके देखा। यहाँ के लोग आज भी शिकवा करते हैं, आज भी गिले करते हैं। उनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आज तक हमारे गांव में कोई नहीं आया और हम जिस हाल पे आज से 50 साल पहले थे और आज भी हमारा हाल वही है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, नावपुरा हिरपुरा शोपियान। आज आलमी योम क़ल्ब है, लेकिन कश्मीर में हार्ट अटैक के आदाद शुमार आपके दिल की धड़कनें बढ़ा सकते हैं। GMC श्रीनगर के माहिर अमराज क़ल्ब का कहना है कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान कश्मीर में दिल के दौरे की तादाद दुगनी हो गई है। GMC में माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर इरफान का कहना है कि ये तादाद नौजवानों में बढ़ गई है और यहाँ तक कि ख़वातीन में भी हार्ट अटैक में इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टर इरफान इन बढ़ते हुए वाक़यात को कोविड और नौजवानों में मुंशियात की लत से मंसूब करते हैं। उन्होंने सीनियर एसोसिएट एडिटर न्यूज़ 18 उर्दू शब्बीर अहमद के साथ बात की। जो हम आजकल देख रहे हैं, नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो, ज़्यादातर नौजवान हार्ट अटैक्स का शिकार होते हैं, दिल के दौरे पड़ते हैं। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? क्या वाकई यहाँ पे बहुत ये मामलात ज़्यादा हुए हैं? अगर हम देखेंगे कि कुछ 5 सालों से कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में क्या ट्रेंड है कि जो 5 साल पहले हम देखते थे हार्ट अटैक्स की ट्रेंड, उससे कम आज मतलब डबल बन गई है। जो आज हार्ट अटैक्स देख रहे हैं हम, वो उससे दुगनी हो गई है। इस साल हमने एक और अजीब किस्म देखा है कि जो हम देख रहे थे कि विंटर में हार्ट अटैक ज़्यादा होते थे कश्मीर में, तो वी हैड ऑलमोस्ट मोर देन 1000 हार्ट अटैक्स इन विंटर, जो 4 मंथ्स में होते थे। लेकिन इस साल समर में भी ऐसी ट्रेंड रही
ऑलमोस्ट जो समर और विंटर का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। जो एडमिशन्स हॉस्पिटल से हो रहे हैं किसी भी सब डिस्ट्रिक्ट या टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, तो हार्ट अटैक्स की जो एडमिशन है वो उसमें फ़र्क नहीं पड़ा है विंटर और समर में, वो बढ़ गई है दिन ब दिन। वजह क्या हो सकती है? तो दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि दो चीज़ों से इसमें ज़्यादा हो गई। एक तो जो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, उससे बड़ा साइको सोशल स्ट्रेस बढ़ गया है, जहनी तनाव बहुत है नौजवानों में, उससे हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। दूसरा जो कोविड इन्फेक्शन है उसमें हमने उतना प्रिवेंशन नहीं किया है जो हमें वैक्सीन करने थे, तो उसकी वजह से जो अंदर से जो स्टेबल डिजीज़ है हार्ट की, वो कोविड इन्फेक्शन से अनस्टेबल बन जाती है। तो ये ट्रेंड ज़्यादा रही इस साल। क्या ड्रग एडिक्शन के साथ, या कश्मीर में एक और चीज़ भी है कि ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ खाते हैं, किसी के पास गए दवाइयाँ ले ली, क्या उसका इसके साथ ताल्लुक है? दो चीज़ें बताऊंगा मैं कि इसमें के बारे में। एक तो है जो सिगरेट स्मोकिंग की प्रेवलेंस, जो सिगरेट स्मोकिंग नौजवान में आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा ड्रग एडिक्शन के बहुत से शिकार है। इसमें ऐसे ड्रग्स है लाइक कोकीन है, बहुत सी टॉक्सिक ड्रग्स है जिसमें हार्ट अटैक, जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत होते हैं। जब हमने इनकी एंजियोग्राफी की, हमने उतना सीवियर डिजीज़ नहीं देखा कॉर्नी आर्टरी में, लेकिन जो हार्ट उसमें एक जिसकी ड्रग्स या इसकी वजह से जहनी तनाव की वजह से एक अजीब किस्म का क्लॉट बनता है हार्ट में, और वो क्लॉट हार्ट अटैक करता है, जो वेसल हार्ट की ब्लॉक करता है। फिर अगर उनको इमीडिएटली ड्रग मिलता है तो वो क्लियर होते हैं। तो हमने देखा उनको हार्ट डिजीज़ उतनी नहीं थी वेसल्स में, लेकिन क्लॉट्स बहुत थे उनमें। आप जैसे माहिरीन से बात करते हैं, आप कहते हैं जी ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया जी, एक्सरसाइज नहीं करते, खेलते नहीं हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये जो लोग हैं जो अच्छे खासे रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, उनमें भी ये नॉक्टर्नल की बात आपने की, नींद में जो हार्ट अटैक आने की बात थी, वो कह रहे हैं आप, वो होती है। तो इसमें बैलेंस कैसे किया जाए? यही एक वजह नहीं है एक्सीडेंटल लाइफस्टाइल, बाकी वजह भी है। चाहे क्या उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्या उसकी चाहे वो डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, क्या उसको सिगरेट स्मोकिंग मत करता है वो, या कोई एबनॉर्मल किस्म का कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में नहीं है, ये क्या स्क्रीनिंग हो गए हैं। और किसी भी स्ट्रेस एक्सरसाइज जब करता है एथलीट, जॉइन जिम करता है जॉइन, या जिसमें बहुत से उसको पावर चाहिए कुछ एक्सरसाइज के लिए या गेम के लिए, उसको चाहिए कि वो अपना एक इकोकार्डियोग्राफ या ईसीजी या डॉक्टर से मिले पहले, बिफोर स्टार्टिंग हैवी एक्सरसाइज। आपको हॉस्पिटल ज़रूरी पहुंचना है, आपको ईसीजी ज़रूरी करना है, और आपको डॉक्टर को दिखाना है। बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कि एक और डिजीज़ है जिसको बोलते हैं एंजाइना, जो एक अलार्मिंग साइन है हार्ट अटैक के लिए। उनको चलने से दर्द होता है, फिर वो इग्नोर करते हैं, खुद ही ओवर द काउंटर ड्रग खाया ये म्यादे की दवाई, वो दवाई, ये दवाई, और उनको थोड़ी सी फ़र्क हो के फिर वो इग्नोर करते हैं। तो ये इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए कि चेस्ट पेन जो सेंट्रल से होती है, खासकर यहाँ से यहाँ तक अम्बलिकस तक, ऊपर से लोअर जा तक, और अगर वो रेडिएट होती है आपको लेफ़्ट आर्म में, वो पेन जो चलने से ज़्यादा होती है, इस पेन को आपको सीरियसली लेना है, और आपको डॉक्टर से ज़रूरी चेकअप करवाना है, चाहे फिजिशियन हो या कार्डियोलॉजिस्ट हो, ताकि आपका इलाज जो है वो टाइम पे पहुँचे। एक इंसान ठीक ठाक है, उसको नहीं पता मुझे कुछ भी नहीं है। महकमे जल शक्ति की अदम तवज्जोही की वजह से ज़िला रामबन के ढलवास इलाके में पीने के साफ़ पानी की शदीद किल्लत के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना है, और कई साल से आवाम की फरियाद का महकमे जल शक्ति रामबन के अफसरों और मुलाजिमीन पर कोई असर नहीं हो रहा है। ढलवास पंचायत के लोगों ने बताया कि कई बार के एहतजाजी मुजाहरे और हुक्काम से वफूद की सूरत में मुलाकातें बेसूद और वक्त का ज़िया साबित हुई हैं। यहाँ पानी का हमें कोई सहूलियत नहीं है। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 4 है, हमारे वार्ड नंबर 4 में ये रोड से नीचे कहीं भी है, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पानी की बड़ी मुश्किल से हम पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। 2 साल पहले एक पाइपलाइन बिछी थी, वो नाले का पानी लगाया गया था, उसके बाद आज तक वो नाले का पानी भी नहीं चला, और पाइपलाइन जितनी सब टूट गई है, कोई भी देखने के लिए नहीं आता है, और नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास में रहते हैं हम लोग। जगह जगह टूटी पड़ी हैं, और हाईवे वालों ने वो तोड़ दी हैं सब, कुआड़ी वगैरह या किसी ने उठा के ले लिया, पीएचई वाले देखते ही नहीं है कोई। नपुरा हिरपुरा शोपियां में लोगों तक मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। हुकूमत की एक स्कीम के तहत बैतुल खलाओं की तामीर के लिए इमदाद फराहम की जाती है, ताहम नपुरा हिरपुरा के कई घरों तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मकामी पंचायत ने गैर मुस्तहक अफराद में फ़ंड्स मंजूर किए हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर शोपियां ने कहा कि इन्हें इस ज़मीन में शिकायतें मौसूल हुई हैं और वो मुस्तहकीन तक स्कीम का फ़ायदा पहुँचाने के इक़दाम करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबे पीडियाट्रिक्स की जानिब से न्यूनेटल केयर एंड पीडियाट्रिक्स के मौजू पर एक CME का इनकाद हुआ,
GMC के प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक सैयद कुरैशी, हेड डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स डॉक्टर शेख मुश्ताक और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। नौज़ायद और बच्चों की तिब्बी निगहदाश्त के हवाले से बातचीत हुई। पहला पीडियाट्रिशियन था मैं साउथ कश्मीर का, तब मेरे पास 20 बेड थे। आज मैं 35 साल बाद आया हूँ, यहाँ 24 बेड हैं। ज़्यादा फ़र्क हमारे हॉस्पिटल में नहीं पड़ा है। हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि हम JK03 जो हो के हमको दयालगाम में एक मल्टी स्पेशलिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल देना चाहिए, क्योंकि हमको लेवल 2 लेवल 3 के लिए पेशेंट्स श्रीनगर रेफर करने पड़ते हैं। गाइडलाइंस क्या आई है, नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है, बच्चों को नए तरीके से कैसे ट्रीट किया जा सकता है। और हमारा काफ़ी कैचमेंट एरिया है, यहाँ पे पेरिफेरी में भी डॉक्टर्स पोस्टेड है, उनको भी अपडेट करना पड़ता है कभी कभी। नई गाइडलाइंस जो आई है रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, और हम पर्टिकुलर एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, उसी पे उस दिन टॉक होती है, डिस्कशन होता है फॉर 1 डे। तो ये जो हमारा CM है, वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इट विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल और द टॉपिक हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड वी आर डिस्कसिंग इट। श्रीनगर में सेहत तंजीम के इश्तिराक से महकमे ख़ानदानी फलाह बहबूद और हिफाजती टीके लगाने वालों ने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। इसमें डिप्थीरिया, प्रोटेसिस, नौज़ायदा बच्चों के टेटनस की लेबॉर्ट्री जांच के लिए लाहेमल पर बात हुई। आलमी इदारा सेहत से वाबस्ता माहिरीन ने हिस्सा लिया। बेटर इज़ टू प्रिपेयर नाउ। और हमारा जो इन डेप्थ सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है मॉनिटरिंग का, इवेलुएशन का या सर्वेलेंस का, बड़ा फर्स्ट क्लास है, इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें फ़र्क आने लगा था। तो बिफोर इट क्रीप्स इन, तो हमने सोचा कि हम लोगों को दोबारा सेंसिटाइज करें और हम रूटीन इम्यूनाइजेशन पे भी उतना ही जोर दें जितना हम कोविड और बाकी चीज़ों पे। वी आर ट्राइंग कि यहाँ पे भी एक WHO accredited लैब डेजिग्नेट हो for diphtheria, neonatal tetanus and pertussis. Otherwise we can also help in sending the samples to nearest designated lab जैसे PGI चंडीगढ़ है। So उसमें WHO सपोर्ट करता है कि जो सैम्पल्स हमें फील्ड से आते हैं फिर हम उनको एक रिवर्स कोल्ड चेन मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट करते हैं। जम्मू शहर के त्रिकुटा नगर इलाके के वार्ड नंबर 52 बागर मंडी में कोरोना मुखालिफ टीका लगाने के सिलसिले में एक कैंप का इनेकाद किया गया। इस स्लम बस्ती में काफ़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगाया गया। तिब्बी अमले का कहना है कि ऐसी बस्तियों के लोग खुद टीका लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, लिहाजा महकमे ने ऐसी बस्तियों में जाकर लोगों को टीके लगवाने की शुरुआत की है। मकामी कारपोरेटरों ने महकमे को अपना पूरा ताउन पेश किया। जम्मू के टॉपशहर खानिया शिव मंदिर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कलपोश फाउंडेशन ने माइग्रेंट कॉलोनी के रिहायशियों को 2 स्टेबलाइजर्स और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स फराहम किए। फाउंडेशन की चेयरपर्सन वीना वंचू ने समाजी कारकुन रवि काजरू के जरिए ये आलात फराहम किए। वीना का कहना है कि लोगों को ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए सामने आना चाहिए। माइग्रेंट कॉलोनी के रिहायशियों ने मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। मतलब सबको पता है कि सेकेंड वेव में क्या हुआ है, थर्ड वेव आने वाली है, कि कहीं भगवान न करे पहले सबसे पहले इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो इन्होंने कहा कि पर हमारे पास होना चाहिए। लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम हुई, इनकी रिक्वेस्ट की वजह से हमने ये कंसनट्रेटर्स गुड़गांव से लेके आई हूँ मैं। कलपुर फाउंडेशन ने इनको डोनेट कर दिया है। टॉपशहर खानिया कॉलोनी को जो यहाँ पे कम से कम 300 350 यहाँ पे घर रहते हैं, तो डोनेट किया। हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अपनी सारी यहाँ बिरादरी जो है हम यहाँ रहते हैं, उनकी तरफ से मैं कलपुर फाउंडेशन का बहुत ही आभारी हूँ। GMC राजौरी के MBBS तलबा ने जम्मू कश्मीर में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑल इंडिया कोटे की दरख्वास्त पर तशवीश का इजहार किया। तलबा ने आज हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और इसे फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए तलबा ने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के तमाम MBBS तलबा के साथ नाइंसाफ़ी है। ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि टंगमर्ग के बाजार में कई माह कबल आग की एक वारदात से 30 से ज़्यादा दुकानें खाकस्तर होने और सरकार की अदम तवज्जोही के बाद इलाके में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग तूल पकड़ने लगी है। समाजी कारकुन एडवोकेट अली मोहम्मद की सरबराही में बाबा ऋषि में एक दस्तखती मुहिम शुरू की गई है।
इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इवेंचुअलिटी और किसी डैमेज को अवॉइड करने के लिए हम ये मांग करते हैं डीसी साहब से या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, यहाँ की लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, श्राइन को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ के मार्केट्स को प्रिजर्व करने के लिए, यहाँ की लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए और निहायत ही ज़रूरत है एक फायर स्टेशन की यहाँ पे। पिछले कई सालों से भी आग की वारदात हुई है, जबकि बाबा ऋषि को और बाबा ऋषि के साथ जो बिल्डिंग थी और जो दुकान थी वो खाकसर हो गई है आग से, कुछ भी नहीं बचा, लाखों नहीं अब्दों का नुकसान हो गया है यहाँ। इसलिए हम इस्तदा करते हैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट को, क्या यहाँ फायर ब्रिगेड किसी भी सूरत में होनी चाहिए, किसी भी सूरत में। कश्मीरी माइग्रेंट नौजवान विकास पंडिता को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की तरफ से नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड से नवाजा गया। इन्हें हाल ही में नई दिल्ली में इस अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड में 1 लाख रुपए नकद के अलावा मेडल और एक सर्टिफिकेट शामिल हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस शोबे के तालिब इल्म रहे विकास पंडिता को ये अवार्ड एनएसएस में इनकी शानदार कारकर्दगी के लिए दिया गया। विकास का कहना है कि नौजवानों को एनएसएस में शामिल होकर आवाम की खिदमत करनी चाहिए। ये एनएसएस नेशनल अवार्ड होता है, ये हर साल जो है वॉलंटियर्स होते हैं, एनएसएस वॉलंटियर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करते हैं अपने इस फील्ड में, उनको मिलता है सेटिस्फेक्शन एंड पीस। आजकल की जो हमारी लाइफ है, इतनी बिजी लाइफ रह गई है कि हम बहुत चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो मैं युवाओं की बात की आपने, जो भारत देश है हमारा, उसको युवाओं का देश बोला जाता है। तो जितने भी युवा हैं वो अपने जो रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी है उसमें से थोड़ा सा वक्त, चाहे वो वीकेंड्स में 1 दिन हो जाए, 2 घंटा 3 घंटा, अपने पूरे इस वीक के टाइम से निकाल के थोड़ा कम्युनिटी के लिए दें, थोड़ा सोसाइटी के लिए दें, देखें कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। हम ऑल लद्दाख क्रिकेट प्रीमियर लीग अख्ताम पजीर हो गई है। फौज की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में इसका इनेकाद किया गया। अख्तामी तकरीब पर LHDC लेह के चेयरमैन ताशी गलसुन मेहमान खुसूसी थे। 15 सितंबर को शुरू हुए इस टूर्नामेंट में 30 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच आर्यन एवेक्स और मैरवल टाइगर्स के बीच खेला गया। आर्यन टीम ने जीत दर्ज की। मेजर जनरल आकाश कौशिक भी मौजूद थे। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात और असनाद तकसीम किए। कश्मीरी नौजवान और बच्चे अब मार्शल आर्ट्स की तरफ बड़े पैमाने पर रागिब हो रहे हैं। कई नौजवान माकूल बुनियादी ढांचे की कमी के बावजूद बच्चों को मार्शल आर्ट्स की तरबियत फराहम कर रहे हैं। पेश है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सर कादरी की ये रिपोर्ट। मौजूदा सूरत हाल में नौजवान और बच्चे ज़हनी तनाव का शिकार हो गए हैं। कश्मीर के नौजवानों में मंशियात की जानिब रुझान काफ़ी बढ़ गया है। अनंतनाग के आकिब मजीद नामी नौजवान ने कम वसाइल और मुनासिब बुनियादी ढांचे की कमी के बावजूद नौजवानों और बच्चों को मार्शल आर्ट की जानिब रागिब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। कई बरसों से आकिब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने में सरगर्म है। वो नौजवानों को समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए कोशा हैं। पूरा साल भर हम ट्रेनिंग करते हैं, हम बच्चों को ट्रैकिंग पे लेते हैं, हम इनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, लेक्स पे लेते हैं, समर कैंप, विंटर कैंप, चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट कराते हैं, सो दैट ये बाहर की दुनिया के साथ कम्पीट कर सके और अपना जो एक इम्यून सिस्टम जो इनका होता है डेवलप करे, फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे और जो ड्रग्स से मतलब बिल्कुल ही दूर है। हमारे पास बहुत सारे ड्रग एडिक्ट भी आते हैं जिनको हमने ड्रग्स बिल्कुल उनका अभी वो ड्रग्स यूज़ नहीं करेंगे, दे आर गुड स्पोर्ट्स पर्सन। कई बरसों से कश्मीर में न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी ले रही हैं। लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट्स जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के लिए भी काफी अहम है। मार्शल आर्ट से एक तो हमारा फिजिकल फिटनेस बेटर रहता है, सेल्फ डिफेंस भी सीख जाते हैं और हम इन ड्रग्स वग्स से दूर रहते हैं। इससे एक तो हमारा फ्यूचर भी डेवलप हो जाता है कि हम आगे इसी गेम में जाएंगे तो हम इसी में अपना फ्यूचर बनाएंगे, इसी मार्शल आर्ट्स में। आजकल की सोसाइटी में क्राइम रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट, तो ऐसे में वुमेन को या किसी भी मतलब लड़कियों को चाहिए कि सेल्फ डिफेंस सीखे। मतलब हमें ये क्रिएट होना चाहिए कि हम अपने आप को डिफेंस कर सकें और एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होना चाहिए कि नहीं, लड़के और लड़कियां इक्वालिटी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमें एक ही जगह पे दोनों चीज़ें मिलती हैं, हम यहीं पर अपना ट्यूशन भी करते हैं और अपना मार्शल आर्ट्स भी सीखते हैं। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट से भी लिंक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा यहाँ मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़। कश्मीर में मार्शल आर्ट के तय नौजवानों और बच्चों के बढ़ते रुझान को काफी खुश आइन तस्वुर किया जा रहा है। ताम बुनियादी ढांचे की कमी,
और मार्शल आर्ट्स को फ़रोग़ देने में मुतल्लिक़ीन की अदम दिलचस्पी से आकिब जैसे नौजवान मायूस हैं। हमारा मेन टाउन में एक इंडोर स्टेडियम तो छोड़िए, इंडोर हॉल नहीं है प्रैक्टिस के लिए। ये नहीं है कि बच्चों में इंटरेस्ट नहीं, ये है कि गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव नहीं ले रही। बच्चे 3000 से ज़्यादा नेशनल प्लेयर्स मेरे ही थ्रू गए हैं, 7 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 7 के ओपन चैंपियनशिप में मेडल्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अनंतनाग के यूथ में टैलेंट नहीं है, लेकिन बस गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना है। कश्मीर के बासलाहियत और हुनरमंद नौजवानों ने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है। ज़रूरत इस बात की है कि मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों के लिए तमाम दरकार सहूलियात मैसर रखी जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट। शुहदा करबला के अरबईन की मुनासिबत से अंजुमन शरीशियान के बैनर तले मलाबुछन मागाम में मजलिस हुसैनी मुनक्किद हुई। दिन भर मरसिया ख्वानी हुई और बाद दोपहर जुलजनाह और अलम शरीफ भी बरामद हुआ। अज़ादारों ने शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। मलाबुछन के इमाम बारगाह हुर्रमल्ला से जुलजनाह बरामद हुआ, जो इमाम बारगाह सूफी मोहल्ला में अख्तिताम पजीर हुआ। सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। आगा सैयद अकील अल मौसवी अल सफ़ी ने फ़लसफ़े शहादत और यौम अरबईन पर रोशनी डाली। पुंछ के मेंढर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में फ़ौज की 10 जैक राइफल्स की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पसमानदा इलाकों के नौजवानों और तलबा की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। फ़ौज का मकसद नौजवानों को हुनर की तरफ राग़िब करना है ताकि वो अपने मुस्तक़बिल को रोशन कर सके। नौजवानों को सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। लोगों ने फ़ौज के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया। कस्बा पामपुर में शौक बाब साहब का सालाना उर्स नहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कल शाम से ही इनके आस्तान आलिया पर अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी दी और दुरूद व अस्कार की महफ़िलों में हिस्सा लिया। आज तबरुकात की निशानदही कराई गई। सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने हिस्सा लिया। उलमा ने इनकी दीनी खिदमात पर रोशनी डाली। पुंछ में पंचायत एसोसिएशन की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। ज़िले भर में पंचायती नुमाइंदों ने शिरकत की। सरपंचों ने पंचायती हलकों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। पंचायती मेंबरान ने ई टेंडरिंग के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने ई टेंडरिंग को बंद करने की मांग की। उन्होंने ई टेंडरिंग बंद न करने की सूरत में LG को अपना इस्तीफ़ा पेश करने की धमकी दी है। ज़िला अनंतनाग में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में तैनात असातिज़ा ने उन्हें टाइम बाउंड्री प्रमोशन देने का मुतालबा किया है। असातिज़ा के एक वफ़द ने कहा कि उनकी DPCs को पहले ही उस हवाले से मंजूरी हासिल हुई है। इसके बावजूद नामालूम वजूहात की बिना पर उन्हें उनके जायज़ हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी फ़ाइल्स मुतल्लिक़ा दफातर में धूल चाट रही है। फ़ौज ने शहीद नायब सूबेदार चन्नी लाल को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। भद्रवाह से ताल्लुक़ रखने वाले अशोक चक्रा चन्नी लाल ने ज़िला कुपवाड़ा में 14 बरस कबल शहादत हासिल की थी। इस हवाले से उधरा डिवीज़न की जानिब से मुनक्किद तकरीब में शहीद की बेवा और उनकी दुख्तर भी मौजूद थी। शहीद की बेवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वाज़ेह है कि दरअंदाजों के साथ झड़प में वो शहीद हो गए थे। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की क़यादत में गोजा में अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। जन अभियान अवामी राब्ता मुहिम के तहत मुनक्किदा अवामी दरबार में दूर दराज इलाकों के लोगों ने शिरकत की और अपने मसाइल उजागर किए। DC ने कहा कि संगरोनी को हुकूमत ने टूरिस्ट विलेज बनाया है, इससे यहाँ की मईशत में काफ़ी बेहतरी आएगी। भद्रवाह में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ईट राइट इंडिया चैलेंज और पोषण अभियान के सिलसिले में इसका अहतमाम हुआ। FSSAI और ICDS ने प्रोग्राम का इनेकाद किया था। आंगनबाड़ी वर्कर्स और आवामी नुमाइंदे इसमें शामिल हुए। DDC की वाइस चेयरपर्सन संगीता भगत ने उसका इफ्तिताह किया। ICDS प्रोग्राम अफसर शाहिदा सरवाल भी मौजूद रहे। फौज की 2RR की जानिब से कुंजर के वसन बांगल में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मरीजों को मुफ्त दवाएं भी फराहम की गईं। काफ़ी तादाद में मरीजों ने अपना इलाज कराया। कमांडिंग अफसर कर्नल रमन, कंपनी कमांडर मेजर पंकज खाटा की निगरानी में मुनक्किद कैंप हुआ और लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।